Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you'll all be very fine and enjoying your winter vacations. You know that it's me, teacher Sobia, your science teacher, and I'm going to represent the Knowledge School Umar campus here and will be helping you out with your lessons. Apart from second informal assessment, you have been sent your winter vacation homework. And but there are some rules to attend these lectures as we have pre-recorded them for you, but still you can come back to us anytime if you want to ask anything. And second thing is that whenever you start listening a message, kindly be ready with your book, highlighter, lead pencil. So whatever instructions we are giving you, whatever special points or the pictures you are looking at, you can note them down, copy them down. Okay, so be with me, bear with me. And second thing is that today I will be continuing my first lecture on behalf of the Knowledge School Umar campus. So I would like you all to open page number 90. I believe you all must have opened it, and the lecture which we will be delivering, it is internal and external forces. I believe all the boys have already done that in the school, as I have delivered all the lectures. But for the female students or for the girls, I think it's a difficulty which we were not able to deliver it in school. So I'll be starting from here, page number 90. I believe you all have opened it. And on the very right hand corner of the page number 90, we have this faith booster. You all know that it's a verse from Surah Al-Anbiya. I'll just translate it for you. They say that we placed firmly embedded mountains. हमने बहुत मजबूती के साथ दबी हुई पहाड़ियों को रखा on the earth, ज़मीन के ऊपर. सो इट वुड नॉट मूव अंडर देम, ताकि ज़मीन इनके नीचे हिल ना सके. डैट मीन्स कि अल्लाह सुबहान व तआला इज़ डैट स्ट्रॉन्ग दैट ही पुट द माउंटेन्स, की उन्होंने माउंटेन्स रखे हैं. उन माउंटेन्स को हम कितनी भी फोर्स लगाएं हिला नहीं सकते. ठीक है, ओनली नेचुरल फोर्स कैन डू डैट. अंडरस्टूड? Well, dear students, now I will be starting my lecture officially here on page number 90. You know that there is a sketch of a car here on page number 90, which I can see that there is on the very front, there is a arrow showing wind, and then there is another arrow on the right hand corner. It is showing air drag. Wind is हवा, जो हवा हम यूज़ करते हैं और जो हवा हम फील करते हैं, जो भी आपके आसपास में लाइक तेज़ हवा चलती है, फील लाइक इट इज़ पुशिंग यू, ऐसा लगता है कि आपको धक्का लग रहा है. और जैसे आंधी आती है, सैंड स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म आता है, तो आपको फील होता है कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एयर है और आपको पुश कर रही है, आप इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है आपको मूव करने में. All these things are coming in wind. And then there is this friction is something which I want to talk about. What I would like you all to do, I would like you all to take both of your hands and rub them against each other fastly, like do like this. You can hear the sound, do it, and your hands will be hot. So it is the rubbing force is called friction. एक दूसरे की रगड़ने की ताकत को friction कहा जाता है, इसे रगड़ने की कुवत भी कहा जाता है. Then we have this gravity. Gravity क्या है? वी ऑल नो कि मून पे जब जाते हैं साइंटिस्ट, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं स्पेस में. ठीक है, बल्कि हम लोग यहाँ पर ज़मीन पर या अर्थ पर जब वॉक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वॉक कर सकते हैं, हम फ्लोट नहीं करते, ऐसे ग्लाइड नहीं कर रहे होते हवा में, क्योंकि ज़मीन के अंदर एक कुव्वत है जो हमें अपनी तरफ खींचती है. ये मकनातीसी कुव्वत क्या कहलाती है? कशिश शकल, और इन अदर वर्ड इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी. ठीक है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ज़मीन की अपनी तरफ खींचने की ताकत. दैट इज़ द रीज़न कि आपका बेड हवा में फ्लाई नहीं कर रहा, आपकी चेयर्स उनकी प्लेस पर हैं, बिल्डिंग्स हवा में फ्लोट नहीं करी. ये सारी चीज़ें ग्रेविटी में आती हैं. ठीक है, आई बिलीव यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. ग्रेविटी इज़ कशिश शकल, ओके, एंड फ्रिक्शन इज़ रगड़ की कुव्वत. यू गॉट इट? सो अब हम जाएंगे पेज नंबर 91 पर. बेयर विथ मी एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. Okay, students, now we are moving to page number 90. On the very first paragraph of page number 90, there is something special which I want to discuss with you. कि आप देखें पेज नंबर 90 में मेरे बिल्कुल फर्स्ट लाइन में है, द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन इट्स डिज़ाइन. कि किसी भी स्ट्रक्चर की मजबूती और उसके कायम रहने की मुद्दत जो होती है, जिस टाइम तक वो खड़ा रह सकता है. एक बिल्डिंग है 10 ईयर्स स्टैंड कर सकती है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 100 ईयर्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसके डिज़ाइन पर. अगर उसका डिज़ाइन सही नहीं है, फॉर एग्जांपल द बिल्डर वाज बिल्डिंग द बिल्डिंग, और उन्होंने क्या किया, एक वॉल थोड़ी सी टिल्ट कर दी या थोड़ी सी टेढ़ी बना दी. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फोर्स ऑफ विंड, थोड़ी सी हवा चलने से या लिटिल बिट ऑफ अर्थक्वेक या जलजिला आने के बाद वो बिल्डिंग फॉल हो जाएगी.
तो ऐसा होने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका डिज़ाइन या नक्शा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड थिंग, इसमें इन्होंने बड़े मज़े की एक पिक्चर दिखाई हुई है बार्न की। अब बार्न जो है आप देखें किस चीज़ से बना होता है, स्ट्रॉज के साथ, तिनकों के साथ या मिट्टी के साथ। ये तो बड़ा वीक सा स्ट्रक्चर है, जबकि आप अपनी बिल्डिंग्स देखें, स्कूल देख लें, घर देख लें, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? इट इज़ मेड अप ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, आयरन बार्स, स्टील। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ब्रिक्स, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल हैं। और डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, दे बिल्ड दिस स्ट्रक्चर्स इन सच अ वे, इस तरीके से बनाते हैं कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, ये बार्न की पिक्चर आपने देखी है। और लेट मी टेल यू द वर्ड मीनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। स्ट्रेंथ मीन मजबूती, स्टेबिलिटी मीन्स कायम रहना, कोलैप्स मीन गिर जाना। ठीक है, इफ़ेक्ट किसी चीज़ का असर होना, विदस्टैंड असर को काबू कर लेना, इनफ काफ़ी होना। ठीक है, स्ट्रक्चर किसी चीज़ की साख्त को कहते हैं, डिज़ाइन नक्शे को कहते हैं, कंसिडर समझने को कहते हैं, डिज़ाइनर नक्शा बनाने वाले को। ठीक है, कॉज किसी चीज़ का असर होना कहलाता है, आउटसाइड बाहर वाला। ओके, अंडरस्टूड? Okay, students. Now we are going after this very first paragraph from page number 91. You can see there is a topic written types of forces. Type बोलते हैं किसी चीज़ की इकसाम को। ठीक है, कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस बोलते हैं कुव्वत को। ठीक है, ताकतों को। तो मेन फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक बाहर से आने वाली जिसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है, और एक अंदर वाली जिसे इंटरनल, अंदरूनी फोर्स को इंटरनल फोर्स कहा जाता है, और बाहरी फोर्स को एक्सटर्नल। तो बेटा कितनी टाइप्स हैं हमारे पास फोर्सेस की? हमारे पास टू टाइप्स हैं, वन इज़ इंटरनल फोर्स, वन इज़ एक्सटर्नल फोर्स। और इन्होंने वन लाइन में लिखा है फोर्सेस दैट एक्ट ऑन स्ट्रक्चर्स आर कैटेगराइज्ड इन टू काइंड्स। कैटेगराइज का मतलब होता है उनके दर्जे बना देना। ठीक है, इसका मीनिंग राइट डाउन कर लें। काइंड्स इकसाम को बोला जाता है, टाइप्स भी इकसाम को बोला जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके ना बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर इज़ वन मोर टॉपिक रिटन हेयर, एक्सटर्नल फोर्स। बाहर की कुव्वत क्या होती है? वेरी फर्स्ट लाइन आप अंडरलाइन कर लें, ये इसकी डिफाइन है, आई एम स्पीकिंग इट फॉर यू। डिफाइन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है। अब हम मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ आपके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है किसी चीज़ का मिलाप होना, विद द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट माहौल को कहा जाता है, और कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। दे में भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा वो को फोर्सेस होती हैं जिनमें किसी चीज़ से मिलता नहीं है, यानी आपका हाथ किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपका हाथ जब किसी चीज़ को टच करेगा, जैसे बुक को या किसी चीज़ को, तो वो आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे आपने किसी को धक्का लगाना है तो आप हाथ से टच करके धक्का लगाएंगे, बिना टच किए तो धक्का नहीं लगा सकते या उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकते। यही कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? काइंडली रीड दिस टॉपिक्स फ्रॉम द बुक। Okay, dear students, we have done the intro of non-contact and contact forces. I believe you would have understood. So what I will do, I will give you the examples of non-contact forces. See, non-contact force I already told you which we cannot touch. So we have just discussed the force of gravity wherein you don't have to touch anything but it is still persisting. The earth is always pulling everything. Try throwing anything from your hand. Wherever you throw it will just go down towards the earth, center of the earth. So this force is non-contact force. Gravity is an example of non-contact force. Now I will give you an example of a contact force. As you can see that in the book they have mentioned an example of a football or an elastic, and they say that if you can stretch a elastic, but I will give you an example of friction. You know, friction is a kind of force wherein the two forces has to rub against each other. दो चीज़ें जब एक दूसरे के साथ मिलकर रगड़ लगाती हैं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है, but you can always opt for the example given in the book. Okay, and then we have this external forces and load. There is a relation between the external forces या बाहरी कुव्वतों का और लोड बोलते हैं बेटा वजन को। काइंडली राइट इट डाउन कि लोड किसे बोलते हैं, वजन को। अब वजन के यहाँ पर इन्होंने टू टाइप्स बताई हुई हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्ट करती हैं। काइंडली गो टू पेज नंबर 92। देयर इज रिटन स्टैटिक लोड। स्टैटिक बोलते हैं साकिन, स्टेशनरी या ना हरकत करने वाले वज़न को। जैसे देखा करें कि आपकी बिल्डिंग में जो वॉल्स हैं वो मूव नहीं करती। इसी तरह एक ट्री है वो मूव नहीं करता। कोई हाउस, बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव नहीं कर रही वो मुसलसल लोड है। इसी तरह नेक्स्ट है डिनामिक लोड या डायनामिक लोड।
बच्चा जो चीज़ मूव करती है, फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर कार है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहीं और होगी। लाइक आप अपनी एग्जांपल लें, आप हर वक्त मूव करते हैं और चलते हैं, ये किस चीज़ की एग्जांपल है? डायनामिक लोड की, या मूव करते हुए या हरकत करते हुए लोड की। इसको रीड आउट करें प्लीज़ अपनी बुक से। थैंक यू। Okay, students, you know that we are on page number 92. We have covered our external forces and types of loads. Now I will be moving towards the internal forces. Internal forces, students, as we have discussed in the very first slide, that it is the force which is coming internally. किसी चीज़ के अंदर से आने वाली कुव्वत internal force कहलाती है. I'm going to read it. The define of the force, it is on the very first line, kindly underline it. Internal forces are forces that act between different parts of the same structure. किसी भी एक structure के different parts की forces उसकी internal forces कहलाती हैं, ठीक है। Like for example, जैसे आप देख लें कि एक बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर ले लें, आपका बैग है, बैग के सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं, इसीलिए आपकी बुक्स नीचे नहीं गिरती और इसी आपके स्ट्रक्चर को या बैग को मजबूत बनाती हैं। बेटा यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस, और ये फोर्सेस की 4 टाइप्स किस चीज़ पर बनी हैं इसको आप अंडरलाइन कर लें। इट इज़ द वेरी लास्ट लाइन ऑफ इंटरनल फोर्सेस टॉपिक, that there are 4 types of internal forces depending upon the direction they act in। जितनी भी इंटरनल फोर्सेस की 4 टाइप्स हैं, ये सारी उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं कि फोर्स या ताकत किस तरह लग रही है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कैन ऑलवेज कम टू योर MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एनीथिंग, सो डू इट। एंड इंटरनल फोर्स के टॉपिक में देर आर 2 वर्ड्स विच आई वुड लाइक यू टू राइट द मीनिंग ऑफ। फर्स्ट वर्ड इज इन द वेरी थर्ड लाइन ऑफ इंटरनल फोर्स टॉपिक, इट इज़ रेजिस्टिंग। रेजिस्ट करना बोलता है मज़ाहमत करना या मज़ाहमती कुव्वत। there is the word resisting forces and the meaning will be मज़ाहमती कुव्वत, ठीक है, या मज़ाहमती ताकतें। and the last word is direction in the very last line of this topic। direction means सिमत, किसी चीज़ की तरफ या सिमत जो होती है वो उसकी डायरेक्शन कहलाती है। now we will be reading the 4 types of internal forces। okay, Okay, students, the very first type of the internal force which has been discussed in your book is compression. Compress words, of course, I believe boys and girls you already know that compress means dabana. So इसको हम अपनी easy wording में, just to keep that in our mind, we can always remember or memorize it as compression is दबाव की कुव्वत। Write it down with the name दबाव की कुव्वत, किसी चीज़ को दबाना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पिलो, प्रेस इट विद योर हैंड, इट विल गेट स्मॉलर, दब जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसी तरह इफ़ यू हैव अ मेट्रेस, प्रेस इट, इफ़ यू सिट ऑन अ सोफा इट विल गो डाउन। सो कंप्रेशन की फोर्स हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करती है। आपको बताया था ना टाइप्स उसकी डायरेक्शन की वजह से हैं। सो ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करती है और इसकी वजह से कोई चीज़ दब जाती है और एक दूसरे पार्ट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। किसी चीज़ का छोटा हो जाना भी इसमें शामिल है। इसी तरह जब आप चलते हैं, आपके पाँव के जूतों की सोल्स जो होती हैं, जैसे आप फ्लिप फ्लॉप्स देखें अपने घर में, चप्पल जो होते हैं वो साइडों से घिसना शुरू हो जाते हैं, उसकी रीज़न यही है। द सेकेंड फोर्स विच हैज़ बीन डिस्कस्ड हेयर इज़ टेंशन। टेंशन आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ के खिंचाव की कुव्वत। सो काइंडली राइट इट डाउन टू मेमोराइज इट वेल। खिंचाव की कुव्वत इस टेंशन। जैसा कि आप किसी इलास्टिक को या किसी स्प्रिंग को अपने दोनों हाथों में पकड़ के खींचते हैं, तो इसमें किस सिमत कुव्वत लग रही है? राइट हैंड की कुव्वत राइट हैंड की तरफ लग रही है, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड की तरफ। इसका मतलब है दो मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें लग रही हैं मुख्तलिफ अपोजिट डायरेक्शन में। इससे कोई भी चीज़ लंबी हो जाती है और छोड़ने के बाद वो अपनी असल हालत में आ जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें कोई चीज़ स्ट्रेच होती है या खींची जाती है। आई बिलीव यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। और इसके वर्ड मीनिंग देख लें। कंप्रेशन में देर इज़ अ वर्ड एक्सर्टेड, इट मीन्स लगाना, ठीक है। कंप्रेशन मीन दबाना, स्क्वीज मीन भी दबाना होता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जी बेटा, इसके बाद हमारे पास है टॉर्शन। टॉर्शन किसी चीज़ को घुमाने की कुव्वत को कहा जाता है। सो आई वुड लाइक यू ऑल टू राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ द वर्ड टॉर्शन, घुमाव की कुव्वत, ठीक है। राइट इट डाउन, घुमाव की कुव्वत। एंड देन व्हाट वी विल गेट दैट जब आपकी मम्मा कपड़े निचोड़ती हैं, कपड़ों को ट्विस्ट करती हैं या स्क्वीज़ करती हैं किसी हैंड में, इसी तरह जब आप किसी स्पंज को अपने हैंड में स्क्वीज़ करते हैं या दबाते हैं, या आप ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि जैसा कि आपकी बुक में एक स्केटर बॉय की एग्जाम्पल है विच वेर इन ही और शी इज स्केटिंग, देन कपड़े निचोड़ने की, स्क्रू ड्राइवर की। बट आई विल गिव यू अ वेरी इजी एग्जाम्पल।
आप अपने डोर की नॉब को देखें कि जब आपका डोर का हैंडल होता है विच यू हैव इन होम, इफ़ यू डोंट हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन मेमोराइज और यू कैन जस्ट थिंक अबाउट योर स्कूल डोर्स, वी हैव अ नॉब जहाँ आप हैंडल को घुमाते हैं। इसी तरह की घुमाव की कुवत को टॉर्शन कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा तो होता है लेकिन ना तो ज़्यादा छोटा होता है और ना बड़ा। बेसिकली इट मेंटेन इट्स पोजीशन एंड साइज़, इसका साइज़ सेम ही रहता है। इसके बाद हमारे पास है शेयर या काटने या टूटने की कुवत। काइंडली राइट इट डाउन। शेयर वो फोर्स है जिसमें कोई चीज़ टूट कर अलग हो जाती है। इसमें दोनों तरफ से ऊपर और नीचे की तरफ फोर्स लगती है। अनलाइक टेंशन, टेंशन में दो अलग तरफ फोर्स लगती है बट इसमें दोनों तरफ की फोर्स ऊपर और नीचे होती है और इससे कोई चीज़ कट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सैंड स्टॉर्म की वजह से ट्री ब्रेक हो रहे हैं, एक ब्रिज फेल हुआ हुआ है। देन वी हैव दिस सीजर वेर इन वी आर कटिंग the person is cutting the branches or stalks of the plant, and then we have this structure stability in the very last paragraph. इन्होंने बताया है कि जब हम एक ब्रिज डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं तो क्या देखते हैं कि उस ब्रिज पे कार्स का लोड वो विद स्टैंड कर सके, मौसम बारिश और स्नोफॉल का लोड विद स्टैंड कर सके। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके वो ब्रिज बनाते हैं। तो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन पोस्ट इट।